मुझे 25 साल पहले की याद आती है कि जब हमने शुरू किया था, हमें कुछ भी पता नहीं था, पर हमें बहुत इंटरेस्ट था कि बच्चों को कल्चर और त्यौहार सब मनाने का। मुझे वो दिन आज भी याद है जब हम अपने छोटे छोटे बच्चों को शॉर्ट हावली पार्क में लेके गए थे और उस शेड के नीचे उनकी क्लास हुई थी। पहले प्रेयर हुई, फिर गेम्स हुई। बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कृति देनी चाहते हैं। VHPA से पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। करंटली मैं VHPA का ऑफिशियल फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर हूँ एंड मेरा सौभाग्य है कि ये प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए कैप्चर कर रहा हूँ। आज हमारे साथ वॉलंटियर्स हैं। डू यू थिंक VHPA हैज इम्प्रूव्ड योर लिविंग? VHPA से मेरा विश्वास बढ़ा, एक दूसरा भाषा सीख सकता हूँ। मैं पाठशाला में स्पेनिश ले रहा हूँ और मैं वो इतना आसानी से बोल सकता हूँ। मैं सोचती हूँ कि VHPA ने डेफिनेटली मेरा धर्म के साथ कनेक्शन बढ़ाया है और मैं इस नॉलेज के साथ मैं दूसरे धर्मों के साथ भी कंपेयर कर सकती हूँ। I think VHP has definitely improved my living. VHP promotes the Hindu cultures and religious practices, so it gives me much more meaning to my life when I'm doing the religious practices at home. So the Hindi VHPA has helped improve my life because since I've already learned one language, it's easier to learn other languages in school like Spanish or French. I believe that the more languages you learn, the more intelligent you become, and it has helped me academically in my school. Also, when applying for colleges, they look at how many languages you've learned. बाल विहार के वजह से मैं हिंदी में तो बातचीत कर सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा भी भारतीय खेलकूद के प्रति भी लगाव है। जब मैं 12 साल के था मैं अटलांटा का क्रिकेट का कैप्टन था और इस साल भी मैं अपना स्कूल का वाइस कैप्टन हूँ और पिछले साल हमारी टीम स्टेट फाइनल्स पहुँची और मुझे MVP मिला। I registered for Bal Vihar in 2008 and I finally graduated last year, and Manju auntie asked me to become a teacher for the 101 class. So right now I'm teaching and my experience here has been really good. I think my Hindi has improved a lot. And do you find yourself able to use Hindi in your life here in the US and also in your time in India? Yes, definitely. पिछले 4-5 साल में मैंने अलग अलग सेवा प्रोजेक्ट्स किए हैं भारत में, जैसे हेल्थ के बारे में वर्कशॉप्स लिए हैं शहर में भी और गांव में भी। एंड इवन दो we're from different parts of the world, जब मैं हिंदी में बोलने लगती हूँ तो वो हम सारे डिफरेंसेस भूल जाते हैं। Anything more recent? So I work in a hospital that has a large population of Indian people who only can speak Hindi, and so I use Hindi I would say at least once or twice every time I go to the hospital to speak to patients in their native tongue, and I think it makes my life much easier because I don't need a translator, but also I think it makes their lives a little bit easier to be able to express themselves appropriately and get the care they want. It's a good way to give back to the community and spend a few hours every other week with like-minded people, get to meet new people and actually, I guess, keep a connection back with, Hindi and with India and the Indian cultural values. I've been connected to Bal Vihar Hindi School for almost 20 years. 2 of my daughters graduated from here. So pretty much been coming here since 1995. My kids have enjoyed it. 5 years back, one Bal Vihar coordinator decided to move out of Atlanta due to job reason, and I'm involved as a coordinator. I'm fortunate enough to have several good volunteers here. I think that among all the cultures that exist, probably Hindus have more to offer to humanity than all the other religions combined. Although other religions have probably obtained lots of wisdom from Hinduism, which is probably the oldest religion that is around, but yet, if we ourselves are strong, I think there is the strength we can pass on to the world, to America. Here in Bal Vihar, there are 2 things. So we focus language as well as Hindu culture, both.
So we celebrate all festivals with great gusto. We celebrate Diwali, we celebrate Dashera, Basant Panchami, Sankranti, Ramnavami, everything. So Bal Vihar tends to serve as a one-stop shop for everything. मेरा बेटा जब यहाँ पे आया था तो वो कुछ भी नहीं जानता था हिंदी के बारे में। अब वो बहुत आसानी से हिंदी पढ़ सकता है। जब हम घर पर कोई भी पूजा वगैरह करते हैं तो हम उसको पढ़ने के लिए देते हैं, तो वो कुछ भी जो हम उसको देते हैं पढ़ने को वो बहुत आसानी से पढ़ लेता है। Both of my kids are at Bal Vihar right now, and what I saw was that they have been learning Hindi. Maldavan now can speak Hindi, they can write Hindi, and they know about the culture. That is important. Now we celebrate all the festivals at home, which we were not actually earlier, and so that I feel that is bringing more cultural value to my kids. घर में आने से वो उस फॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन जो होता है एक लैंग्वेज का, एक भाषा का, वो मिलता है, तो वो एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य पूरा होता है। मैं इंडिया में पैदा हुआ था, वहाँ पला बड़ा, तो सब कुछ हमारे डीएनए में था। हम पैदा हुए तो हमने हर चीज़ देखी थी, लेकिन हमारे बच्चों ने नहीं देखा है। तो मैं समझता हूँ कि बाल विहार आने से, यहाँ फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, यहाँ जो हम ड्रामा करते हैं, जो प्ले करते हैं, उससे हमारे बच्चों को कल्चरल नॉलेज मिलता है। एंड आई थिंक इट्स अ टोटल पैकेज, नॉट जस्ट अ लैंग्वेज। So I want them to get both cultural values, the cultural value here as well as the culture of our culture. ये बच्चे को बाल विहार में क्यों डालते हो और आपकी बाल विहार की क्या उम्मीदें? हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रीय भाषा है, उसकी एक अपनी मिठास है, उसकी एक अपनी पहचान है। तो मेरा मूल उद्देश्य मेरे बच्चों को बाल विहार में रखने का ये था कि मैं उनको हिंदी इसलिए सिखाऊं ताकि वो अपने मूल से जुड़ सकें, उसकी समझ से जुड़ सकें। वो समझ जो आती है वो इंग्लिश में वही बात कहने से नहीं आएगी। जो गर्व उन्हें जो मिलेगा अपनी संस्कृति को अपनी भाषा में पहचानने से, वो बात हिंदी भाषा सीखने पर ही आएगी, ऐसे नहीं आएगी। तो मेरा मूल उद्देश्य ये था। हाँ, उसकी साइड इफ़ेक्ट्स में ये हुआ है कि उनका खुद का गर्व भी बढ़ा है। उनको लगता है कि मुझे दूसरी भाषा आती है, मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, बोल सकती हूँ। पापा, मुझे पूछना है, मैं यहाँ 8 साल से आ रहा हूँ, क्यों? This place, this gives you a structure. अगर वो structure आपके पास नहीं होगा, तो you will always have a situation कि other priorities will take over. आज आप जब देश जाते हो, people get surprised because you probably know more about Indian culture than half the kids out there. कोई भी बड़ा हमारे यहाँ आता है तो दोनों बच्चों की आदत ये है कि धोख देते हैं, उनको झुक के नमस्कार करते हैं। हमारे बच्चों को मैं एक लैंग्वेज नहीं देना चाहता, मैं उनको इंडिया से इंटीग्रेट करना चाहता हूँ इन द सेंस बिकॉज आने वाले 5-10 सालों में इंडिया इज गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। आज हम ब्रिज हैं, हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में हम एक ब्रिज हैं, और मैं चाहता हूँ वो ब्रिज हमारे बच्चे भी बने रहें। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वी इंटीग्रेट देम विद द इंडियन कल्चर, और मैं समझता हूँ VHP गिव्स दैट कल्चर। सो इट इज़ अ टोटल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, नॉट जस्ट अ लैंग्वेज। हम किस तरह से अपने को हिंदी संस्कृति और हिंदू धर्म से जुड़े रखें, ये सारा दायित्व तो हम पर है, कोई और नहीं करेगा, ये हमें ही करना है और हमें आगे करना है और उनको उसके आगे करना है। तो जैसा श्रेय है वैसे हम चाहते हैं कि सैकड़ों बच्चे ऐसे निकलें बाल विहार के जो कि आगे हमें मार्गदर्शन दिखाएं और हिंदू धर्म और हिंदी भाषा को आगे बढ़ाएं। और अपने धर्म के बारे में जो हमें सिखाता है किस पथ पे चलना है बड़े होकर, वो सब समझना बच्चों के लिए थोड़ा ज़रूरी है। ये समझते हुए हमने यहाँ पे डाला उनको। यहाँ पे आके प्रार्थना करते हैं तो कम से कम बच्चे पूछते हैं कि प्रार्थना का मतलब क्या है और क्यों करते हैं, और उसके एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देना तो थोड़ा तो समझ में आता है। 2 बेटे बाल विहार आते हैं। मैं उनको बाल विहार इसलिए लाता हूँ ताकि उनको हिंदू संस्कृति के बारे में पता रहे। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे आने के लिए, उनको ज़बरदस्ती प्यार से या फिर फुसला के मीनिंग ब्राइब करके उनको यहाँ लाया जाता है, विच इज़ फाइन, आई एग्री विद इट, और मेरे ख्याल से सही कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ। मम्मा, आज मुझे हिंदी स्कूल नहीं जाना है। आज क्यों नहीं जाना आपको हिंदी स्कूल? क्योंकि हिंदी स्कूल में इतना टाइम लगता है होमवर्क करने में, और मेरा होमवर्क ख़त्म ही नहीं हुआ है अभी तक, और इतना देर लगेगा, और क्विज़ के लिए पढ़ाई भी करना है। अच्छी तरीके से हिंदी सीखते हो
वहाँ पे जाके आप अच्छी तरह से हिंदी सीखते हो और आपको वहाँ पे अपने टीचर से कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और अपन जो भी त्यौहार मनाते हैं वो आपको वहाँ से सीखने को मिलते हैं कि हम क्यों मनाते हैं। अभी तो आप कई सारे सालों से जा रहे हो इसलिए आपको पता है। इंडिया में कोई बच्चा जाके ये नहीं पूछता कि आज हम होली क्यों मना रहे हैं या आज हम दिवाली क्यों मना रहे हैं। वो उनके सिस्टम में अंदर से पता है उनको कि आज हम क्यों मना रहे हैं। जबकि यहाँ पे आप रहोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम ये चीज़ें क्यों करते हैं। इसीलिए हिंदी अपनी संस्कृति सीखते हो, आपको अपनी मूवीज़ के बारे में पता चलता है, आपको वहाँ पे बातचीत करने से पता चलेगा कि शोले की क्या है। में हमारी बच्ची की पर्सनालिटी बहुत बदली, उसने बहुत सीखा। उसमें जो भारतीयता का पुट है वो बहुत उससे मतलब उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई। जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सबके साथ वो इंटरेक्ट करती है वो बिल्कुल अलग है। तो बच्चे को जानने से, बाल विहार में जाने से बहुत फ़ायदा। नमस्ते, मेरा नाम अनुष्का है। सतीश जी, आप बाल विहार को समय और सेवा क्यों देते हैं? एक तो बच्चों के साथ बात करने का मौका मिलता है, हम उम्र लोगों के साथ बात करने का मौका मिलता है और फिर साथ में हिंदी भाषा को जो प्यार है, जो बचपन से हम हिंदी बोलते आ रहे हैं, वो और बच्चों को, यहाँ अमेरिका के बच्चों को सिखाने का जो मौका मिलता है उसमें खुशी होती है। मैं हिंदुस्तानी लोगों से जुड़ता हूँ, यहाँ पर वो प्रेम मिलता है जो आमतौर पर अमेरिका में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए मुझे यहाँ पर वक्त गुजारना पसंद है। मेरे दोनों बच्चे यहाँ पर आते हैं तो उनके डेवलपमेंट के लिए मेरा यहाँ पर इन्वॉल्व रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने बच्चे बाल विहार में क्यों लाते हैं और क्या बाल विहार और आपके अनुभव क्या है बाल विहार के? देखिए, बात यह है कि हमारा हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता, हमारे त्यौहार और हमारे कल्चर, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को जितना हम अवगत करा सकें, जितना हम उनको I'd like to thank Bala Vihar for the great work they are doing. My daughter has been coming here for one semester. She thoroughly enjoys it. And from a parent point of view, I really like getting my daughter here because of the culture that is imbibed in my daughter as well as the ability to converse in Hindi. सबसे पहले मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा बाल विहार का, और हमारे बच्चों के मिलने जुलने और बात करने सीखने के का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। यहाँ पे हमें भी मिलने जुलने का मौका मिल जाए। काम कर रही है तो सबसे पहले तो बाल विहार का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस तरह का करिकुलम था अगर वो नहीं होता और हमको अगर ये पता नहीं चलता कि इस तरह की संस्था है, इस तरह का प्रोग्राम है, बाल विहार है, तो हम कभी उससे ज्वाइन नहीं। My son has graduated from Bal Vihar. He's developed an appreciation for the Indian culture. And over and beyond this, he has developed lifelong friendships. हम लोगों को भी बहुत बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिल रहा है। तो हो सकता है मैं अपने बच्चों की और अच्छी परवरिश कर पाऊंगी इस संस्था से जुड़े होने के बाद। एक बेटा तो ऑलरेडी स्नातक हो चुका है, दूसरा इस साल हो जाएगा। जब ये दोनों भारत गए, वहाँ के लोग ताज्जुब कर रहे थे, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये बच्चे अमेरिका में रहते हैं, उस कल्चर में रहते हैं। जो टीचर्स हैं, दे आर ऑल स्टार्टअप ट्रेन, बहुत ज़्यादा टीचर्स, और ये जो अपॉर्चुनिटी है वो मुझे लगता है कि बियॉन्ड जाकर के भाषा को सिखाने की, कि कैसे बच्चे सीखें मोर इंटरेस्टिंग तरीके से, वो एक बहुत ही बढ़िया एस्पेक्ट है जो कि नॉर्मली और हिंदी वाले जो हेरिटेज स्कूल्स हैं उसमें नहीं आता। और हिंदी इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट विथ आवर कल्चर and it's time for me to give some things to the society back. I'm not on the only side of the receiving end, but also teaching and being a part of such a rich heritage cultural activities which Bal Vihar is offering. जब बाल विहार जैसी संस्था में बच्चे आते हैं तो उनके आसपास उनके ही जैसे बाकी बच्चे रहते हैं, तो वो जो ग्रुप में जब बच्चे सीखते हैं अपने जैसे बच्चों के साथ और अपनी ही जैसी परिस्थिति में बच्चे जो जी रहे हैं उनके साथ जब वो सीखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे से इन संस्कारों को एक्सेप्ट कर पाते हैं। मैं हिंदी की शिक्षिका रही हूँ, तो इसलिए इस संस्था से जुड़ी, इस काम से, और जो भी अपना अनुभव था उसको इस काम को करते समय उसका उपयोग किया और उसके द्वारा कोशिश की कि हम लोग इस पूरे कार्यक्रम को एक नया रूप दे सकें। विभिन्न लेवल के, विभिन्न स्तर के बच्चों को कैसे हिंदी सिखानी है, कैसे अपनी हिंदी भाषा और संस्कृति सिखानी है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बेस हमारा प्रोग्राम है। मैं बच्चों को घर पे सिखाना चाहती थी, एक साल पूरी कोशिश भी करी, आई के ऊपर मैं गई ही नहीं। अभी 5 साल से बच्चे हैं, हम लोग घर पे तमिल भी बात करते हैं बच्चे,
काफ़ी हिंदी भी बोल लेते हैं। मेरे बच्चे दोनों बाल विहार में आते हैं, वो हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं मगर उनको लिखने और पढ़ने में बहुत परेशानी थी, तो इसलिए इसी वजह से मैंने ये बाल विहार ज्वाइन किया। मुझे मेरे बच्चों को हिंदी पढ़ाना और सिखाना ही है। भले ही हम घर में गुजराती बोलते हैं मगर हिंदी और गुजराती काफ़ी जुड़ी हुई है, तो मेरा यही गोल है। छोटा वाला हमेशा मुझसे कहता था कि मुझे हिंदी क्यों सीखनी है, मुझे इंडिया वापस जाना नहीं है और यहाँ पे कोई हिंदी बोलता नहीं तो मैं क्यों सीखूँ हिंदी। लेकिन जब वो यहाँ आया और इतने बच्चों को देखता है कि भाई इतने बच्चे सीख रहे हैं तो उसे भी लगता है कि हाँ सब सीख रहे हैं तो मुझे भी सीखना चाहिए। मैंने अपनी ये जो यात्रा है बाल विहार की वो गुणक बाल विहार से शुरू करी थी और वहाँ पे मैंने 3 साल वॉलंटियर किया। तो बाल विहार में एज ए वॉलंटियर आती हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। ये सिर्फ हिंदी पढ़ना या लिखने के बारे में नहीं है, ये अपने कल्चर के बारे में है, ये अपने संस्कृति के बारे में है, ये अपने बच्चों को सिखाने के बारे में है। क्योंकि ये चीज़ें अगर हम लोग आज बताएंगे तो आगे समझ पाएंगे कि कंट्री में पूरे जग में हम लोग क्यों इतना ज़्यादा नाम कमा रहे हैं। Congratulations to everybody who's involved with Bal Vihar on the 25th anniversary. We are very fortunate to have Bal Vihar in Atlanta. We wish Bal Vihar all the best and to expand much more in the future. बाल विहार के रजत जयंती के अवसर में आपको शुभकामनाएं और बधाई। इस बाल विहार में हमें वॉलंटियर करने से बहुत कुछ मिला। हमने बाल विहार को इतना दिया नहीं जितना हमें मिला। हमें अच्छे फ्रेंड्स मिले, हमें अच्छा वातावरण मिला, हमें नन्हे नन्हे बच्चों की किलकारियाँ मिली और हमें बहुत खुशी हुई। बाल विहार दिन रात ऐसे ही तरक्की करता रहे और वॉलंटियर ऐसे ही अपने लगन से लगे रहें, ये वृक्ष पनपता रहे और ये मेरी शुभकामना।